Okay, that is what is written. We use various substances in day to day life. We have previously learnt in some detail about a few of them. Okay, बहुत सारे substances जो हम daily life में इस्तेमाल करते हैं, we do not know the molecular formula, even we do not know the chemical name of that substance, but we use that substance in our day to day life, so we'll study it in detail in this chapter. Okay, and we have previously learned in some detail about a few of them, their uses and their constituents and the method of their preparation we'll study in this chapter. Okay, the name of the substances in everyday use are given below. See, everyday यूज आने वाले जो हर दिन डेली लाइफ में डेली सोप में इस्तेमाल होते जो सारी चीजें, हियर द सब्सटेंसेस आर गिवन, दैट इज टेबल सॉल्ट, द सॉल्ट व्हिच वी यूज इन कुकिंग. Second is soap, that is soap you all know. Toothpaste, baking soda, which baking soda, water, curd, milk, alum. Alum is nothing but a like rock. Okay, after the lecture is over, you just search it on the Google, what is alum. You can see the structure of alum. It looks like a crystal rock material. Okay, then it is iron, sulfur, and washing powder. See, these are the various substances which we do use in our day to day daily life, but we are unaware of their chemical formula, we are unaware of their molecular formula, their name, scientific name. So how they are being made, how they are being processed, so we will study that in this chapter. Okay, chalo. Then first we'll start important salts in our daily life. Okay, now what are this important salts in our daily life? What are salts? First it has been written, what are salts? The ionic compounds which do not contain H plus and OH minus ions, contain only one kind of cation and anion, are called as simple salts. So if you are having your textbooks, just underline this line, the ionic compounds. See, now what is ionic compounds? This ionic compounds is nothing but it is the neutral compounds, yes, and which are made up positively and negatively charged ions. Positively charged ion constitutes of cation, and negatively charged ions are for anions. Okay, so ये एक ionic compounds एक positive charge and it consists of negative charge. Positive charge is H plus ions and negative charge is OH minus ions. Okay, and it has one kind of cation and anion. These are called as simple salt. See, you have example given over here, Na2SO4, that is nothing but sodium sulfate. Yes, sodium sulfate, K3PO4, it is potassium phosphate. Okay, and what is written, CaCl2, that is calcium chloride. Understood these three examples? So these three examples where we use in our daily life, we will study that, but first of all you need to know the chemical name of these various substances. First is Na2SO4, that is sodium sulfate. K3PO4 is potassium phosphate. CaCl2 is calcium chloride. Understood, students? Okay, understood this thing? Yes. Then inorganic substances occur naturally in the form of salts rather than acids or base. What is written? Inorganic substances. See, inorganic substances is nothing but the substances which do not which do not contains carbon. Okay, these organs, they do not contain carbon. These substances do not contain water. Okay, these are the simple molecules. Okay, these are the simple molecules, organic compounds. These are the simple molecules. Hashmi, please off your camera. Sultan, yes. These inorganic compounds means it is the simple molecules that usually it consists of one or two different elements. ठीक है, इसके पास सिर्फ एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स, दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, बस इतने ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इससे उल्टा है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, शुगर, ये सारे रहते हैं. ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहेंगे? ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक से ज्यादा एलिमेंट है, जैसा कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. अंडरस्टूड? ओके.
then what happen, naturally in the form of salts rather than, ये salt के form में आता है, ये acid और bases के form में नहीं आता है. About 80 million tons of salts are added every year to sea water. अब sea water के अंदर 80 million ton, you can see the value, you can see the number it has been written, that is 80 million. First of all tons आ गया है आपको, साथ में million आया, तो it is 80 million tons. 80 million tons of salt हर साल sea water में डाला जाता है. Therefore the sea is said to be a rich source of salt. Underline this line, underline sea को rich source of salt क्यों कहा जाता है? Because every year 80 million tons of salts are added every year to the sea water. Understood? In fact, the sea is a rich source of several salts of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, potassium, calcium and bromine. In fact, क्या बताया? sea एक rich source है बहुत सारे salts का. sea के अंदर बहुत सारे, आकिब please off your camera. Okay, nobody will on their camera. ठीक है. सी व्हाट, सी को हमेशा रिच सोर्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, कौन से? अंडरलाइन दिस लाइन स्टूडेंट्स. ये वेरियस काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स कौन से हो गए? ये क्लोरीन, सोडियम, आपको ये सारी चीजें आंसर आंसर इन वन वर्ड में लिखने आ सकती है. और मैं अभी भी आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैंने जो द पेपर आई हैव सेट टू यू ऑल, इट इज नॉट ओनली द टेक्सचुअल क्वेश्चंस. आपको एक एक चीज पढ़नी है विद इन द टेक्स्ट बुक, विद इन द चैप्टर. इसीलिए मैं एक एक लाइन पे फोकस करती हूँ. इज इट राइट और रॉन्ग? इसीलिए मैं एक एक लाइन पे फोकस करती हूँ, बिकॉज यू ऑल शुड राइट एंड रीड एंड गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स. ओके, यस. ठीक है, तो मैंने सिर्फ टेक्सुअल क्वेश्चंस नहीं डाली हूँ. आई हैव गिवन इन बिटवीन द चैप्टर्स ऑल्सो द क्वेश्चंस इन बिटवीन द चैप्टर ऑल्सो. ओके, सो क्या बताया है कि कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट सी वाटर में है? क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड ब्रोमीन. एंड व्हाट इज रिटन, हाउएवर वी आल्सो यूज अदर सॉल्ट्स अपार्ट फ्रॉम दीज इन डे टू डे लाइफ. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. अब हम ये सारे सॉल्ट्स तो वी गेट फ्रॉम द सी वाटर, बट अपार्ट फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ये सॉल्ट्स के अलावा भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स इस्तेमाल करते हैं, और वो सॉल्ट्स हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. नाउ वी विल स्टडी दोज इन डिटेल. ओके, नाउ सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर. एवरीबडी नो व्हाट इज पीएच? पीएच पता है सबको क्या होता है? पीएच, पीएच, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, देखो पीएच है ना, क्या है पीएच? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. बट व्हाट वी विल सी इन दिस कि पीएच से मतलब क्या मालूम पड़ता है? सी पीएच है ना, एक स्केल है. इट इज अ स्केल. स्केल मतलब हमारी वो वाली स्केल नहीं, फुटपट वो वाली नहीं, रूलर की बात नहीं कर रही हूँ मैं. इट इज अ स्केल टू मेजर करता है वो, चाहे टू मेजर द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ अ एक्वस सोल्यूशन. किसी भी चीज का एसिडिटी मालूम करना, या कितना वो एसिड है, कितना वो बेसिक है, किसी भी लिक्विड एक्वस सोल्यूशन का पीएच मालूम करना. पीएच एक स्केल है. ये स्केल आपके सामने नजर आ रही है, दिख रहा है आपको? yes, 1 to 14. It differentiates acids and bases and neutrals. तो यहाँ पर देखो, ये this is the scale. okay, okay, it is not power of hydrogen, it is potential of hydrogen beta. Potential of hydrogen. yes, Hidaya, it is potential of hydrogen. okay, ठीक है. Now see this pH line. Remember every time that if what I'm saying is, see, we have seen in the previous lesson that a salt is neutral when its pH value is 7. See, whatever the aqueous solution you are taking, and you have to measure the pH of that aqueous solution. For example, I am saying this, okay, you have a sample of sea water.
सी वाटर का आपके पास सैंपल है एंड यू वांट द पीएच ऑफ दिस सैंपल. So what you will do, you will measure the pH, and if the value comes 7, if the value comes 7, so what you will say, the pH of the sea water is 7, that is neutral. So whenever the value of any aqueous solution comes 7, that means the pH of that substance, the pH of that solution is neutral. Understood? Okay. And such salt is made from a strong acid and a strong base. Now what is written? मैंने क्या बोली, जिसका 7 वैल्यू आया उसको न्यूट्रल बोलेंगे. एंड द पीएच रेंजिंग फ्रॉम 1 to 6, 1 to 6 will be acidic condition, will be acidic condition. And the pH ranging from 8 to 14 will be constitute of basic solution. Understood? Acidity and basicity कैसे मालूम पड़ेगा हमको? 1 to 6 acid, 7 is the neutral, and 8 to 14 is basic one. Understood, students? Okay. Chalo, we'll start this. First salt. What I am telling, first salt which we use in our day-to-day life. That is, first is sodium chloride, table salt. आपके घर पे जो नमक खाते हो आप लोग, जो नमक, टाटा नमक, everybody having that टाटा नमक kind. Yes, so it is nothing but sodium chloride. Okay, that is the chemical. The molecular formula of sodium chloride is NaCl. The chemical, the common name I'm saying, listen to me very carefully. I'm saying the common name of sodium chloride is table salt, and the chemical name of sodium chloride is the molecular formula of sodium chloride is NaCl. Understood, students? Okay. चलो, टेबल सॉल्ट देखो, यहाँ नमक दिख रहा है आप लोगों को, राइट? यस, तो ये इसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा. टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट विच गिव्स अ सॉल्टी टेस्ट टू फूड, जो खारापन लाता है, खट्टापन लाता है खाने में, इज द मोस्ट यूज्ड ऑफ ऑल सॉल्ट. सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉल्ट है ये, जो हम हर दिन हर खाने में इस्तेमाल किया जाता है इसको, तो बहुत कॉमन और मोस्टली यूज्ड है, सबसे ज्यादा यूज होता है ये. ठीक है. इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड. केमिकल नेम क्या है इसका टेबल सॉल्ट का? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन between sodium hydroxide and sodium hydrochloric acid. What am I telling? What am I telling? सोडियम क्लोराइड, ये जो सोडियम क्लोराइड नमक है, अब ये किससे बनता है? ये बनता है ये बनता है किससे? दो चीजों से बनता है. दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं. इट इज अ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली, जिसमें एसिड और बेस क्वांटिटेटिवली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. जो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो अभी एसिड और बेस, सी एसिड और बेस, मैंने क्या बोली थी, अगर H प्लस आयंस आया तो इट इज एसिड. व्हेन इट कम्स OH माइनस आयंस, दैट इट इज बेसिक. तो H प्लस और OH माइनस आयंस एक दूसरे के साथ आएगा तो देन इट विल फॉर्म टुगेदर, इट विल फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सी दिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. NaOH is the molecular formula of sodium hydroxide. इसमें आ गया OH, मतलब ये बेस हो गया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर नाम में ही एसिड है, यहाँ पर नाम में ही एसिड है, तो क्या आ गया? HCl. तो H प्लस और OH माइनस आयंस आ गया, तो क्या हो गया? ये दोनों भी, ठीक है, acid and base together form the neutralization reaction. Then we have already seen that this is a neutral salt and that the pH of the value of its solution is 7. तो ये जो stable salt है ये neutral है क्योंकि इसका pH value कितना है? 7. Understood, students? Okay.
चलो, see, after, see here you can see properties and uses. This is the homework to you all, that study properties and uses. I might not explaining you this thing, but you have to study this thing. Okay, चलो एक आध दो का मैं समझा ही देती हूँ आप लोगों को. देखो, सबसे पहले ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज, एवरी प्रॉपर्टीज एंड एवरी यूजेस फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अंडरस्टूड दिस थिंग? Then what is written? Common salt is a colorless crystalline ionic compound. ये जो common salt का structure बताया है, colorless रहता है, crystalline structure है, crystal कैसे structure रहता है, and there is no water of crystallization in its crystalline structure. इसके अंदर there is no water content present over here. Okay. Then it is neutral salt, salty in taste. Neutral है because it has pH. And then salty taste means what? उसका जो taste आता है, that is salty. This compound is used for the production of salts like Na2CO3, NaHCO3. ये जो compound है, this sodium chloride compound, ये क्या क्या बनाने के लिए काम आता है? ये क्या क्या बनाने के लिए काम आता है? सोडियम कार्बोनेट and NaHCO3, that is sodium bicarbonate. Okay. When an electric current is passed through a saturated solution of sodium chloride, when an electric current is passed through a saturated solution sodium chloride, it is electrolyzed and hydrogen gas is released at the cathode. आप लोगों को आवाज आ रही है स्टूडेंट्स मेरी? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फ्रॉम वेयर टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सी व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? एनीबॉडी नो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ओके, सी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ये बोला जाता है कि वो क्या कंटेन करता है. इट कंटेन अमाउंट ऑफ सल्यूट जो केपेबल रहता है डिसॉल्व, द वन हु इज केपेबल ऑफ बीइंग डिसॉल्व्ड. ठीक है, तो ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये पूरा मिक्स हो जाता है. जिस सैचुरेशन सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ रहता है. जैसा फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग शुगर एंड वाटर. अब मैंने ली शुगर एंड वाटर. ठीक है, तो उसमें मेरा शुगर, अगर मैंने शुगर को वाटर में डाली तो शुगर हो गया मेरा सल्यूट और वाटर हो गया मेरा सॉल्वेंट. तो मैंने जब शुगर को वाटर में डाली, इट बिकम्स dissolved in the water. So this point is called as this solution which is made from the solute and the solvent is called as the saturation solution. Understood this thing? हाँ, ऑफ विच, सो यहाँ पर वो तो मैंने शुगर एंड वाटर का एग्जाम्पल दी, बट यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है? द एग्जाम्पल इज ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसका कॉमन नेम है ब्राइन. जिसका कॉमन नेम क्या है? ब्राइन. और ये इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है. इलेक्ट्रोलाइज्ड मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसका, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोलाइसिस इज नथिंग, मतलब क्या होता है? डायरेक्ट यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड व्हाइल क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड. पॉजिटिव टर्मिनल से H+ आयंस निकलेगा इसके, और नेगेटिव टर्मिनल से Cl- आयंस निकलेगा. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस. अब जो क्लोरीन गैस बनती है इंडस्ट्रीज वगैरह में, कैसे बनती है? ये इसी से बनती है, जिसमें से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस रहता है. पॉजिटिव आयन से क्या रिलीज होता है? H+ आयंस. नेगेटिव आयन से Cl- आयंस रिलीज होता है. ठीक है, इन दिस मेथड एन इंपॉर्टेंट बेसिक कंपाउंड NaOH इज फॉर्म्ड इन द सेल. नाउ ये जो क्लोरीन गैस बनाने का जो प्रोसेस है, इसी दौरान एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज द NaOH विच इज द बेसिक कंपाउंड. व्हाट इट इज? इट इज द बेसिक कंपाउंड. ठीक है, ये फॉर्म होता है. Now you can see the reaction of NaCl and water. देखो, बैलेंसिंग तो मैं आप लोगों को इधर नहीं समझा पाऊंगी बिकॉज ऑनलाइन इट कुडंट हैपन. तो बैलेंस ये, इफ यू आर एबल, आई एम आस्किंग यू ऑल, इफ यू आर एबल टू राइट इट इन एग्जाम द रिएक्शन, यू कैन राइट, अदरवाइज लीव द रिएक्शन.
otherwise leave the reaction. If I have asked the properties and uses of anything, and if the reaction is there in that, if you want to write that, if you can write, you write, but if you couldn't write the reaction, please don't write. Okay, chalo. Then when salt is heated to a high temperature about 800 डिग्री सेल्सियस इट मेल्ट. जब सॉल्ट को कितने हाई टेम्परेचर पे व्हेन वी विल हीट इट इट टू 800 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम उसको हीट करते हैं तो इट स्टार्ट्स मेल्टिंग. दिस इज कॉल्ड द फ्यूज्ड स्टेट ऑफ द सॉल्ट. तो याद रखो, ये भी पॉइंट याद रखो, फ्यूज्ड स्टेट ऑफ द सॉल्ट. हेलो. yes students, my voice is audible to you all. आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है. तो व्हाट क्या बोली मैंने, जब सॉल्ट को व्हेन यू विल हीट सॉल्ट to a high temperature of 800 degrees celsius it starts melting, and this melting state of salt is called as the fused state of the salt. Okay, Safura, off your camera. So point number 6, अब जब salt fused state पे आ जाता है, okay, when fused salt is electrolyzed chlorine gas is released at the anode and liquid sodium metal at the cathode. Understood? जब फ्यूज जो सॉल्ट है वो इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस, देन क्लोरीन गैस रिलीज होती है कहाँ पर, एनोड टर्मिनल पे, एंड लिक्विड सोडियम मेटल एट द कैथोड. पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल पे ये दो चीजें रिलीज होती है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? प्रॉपर्टीज एंड यूजेस आर अंडरस्टूड? ओके, तो मैंने अभी भी बोल रही हूँ कि यू हैव टू राइट, you have to learn each and every properties and uses, because I have given this in the exam. properties and uses आप लोगों को एग्जाम में दिया गया है. ठीक है. सेकेंड सॉल्ट वी विल स्टडी दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. बेकिंग सोडा आपने नाम सुने होंगे, घर पे भी यूज होता है. यस, बेकिंग सोडा. यस, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट. सी, लिसन टू मी केयरफुली वॉट एवर आई एम सेइंग. बहुत ही अच्छे से सुनना व्हाट आई एम सेइंग. बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3. क्या है? NaHCO3. अंडरस्टूड? ओके, सो विल स्टार्ट इट. यहाँ पर एक इंस्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो मैं पढ़ के बताती हूँ. थोड़ा आप लोगों का एग्जाम्पल देके समझाया है. आवाज नहीं आ रही सुमेरा मेरी? Is my voice audible to you all students? Yes or no? Yes. Okay, let's start. Your mother, यहाँ पर एक इंसिडेंट बताया है कि your mother brings cake on your birthday or makes it at home. She also makes crisp bhaji. Have you ever asked your mother what makes the cake porous or the bhaji crisp? Okay. कभी आपने पूछे हो कि केक को जब वो पोरस फूलता है और भाजी जो क्रिस्पी बनती है, क्रिस्पी, तो वो कैसे होती है? तो वो कैसे होती है? ओके, तब मैं बताती हूँ हाउ इट हैपेंस. इट हैपेंस विद इन द, इसका आंसर यहाँ पर ही नीचे लिखा हुआ है. सुमेरा, ऑफ योर कैमरा. सुमेरा, ऑफ योर कैमरा बेटा. ठीक है. मदर एड्स बेकिंग सोडा इन द बैटर. क्या बता रहा है कि क्यों भाजी क्रिस्पी होती है? कभी भी देखो हम कुछ भी चीज क्रिस्पी बनाते हैं ना, एनी फूड आइटम, व्हेनेवर क्रिस्पी फूड आइटम हैज मेड, तो इस उसके अंदर 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर दिया जाता है, इसीलिए वो क्रिस्प हो जाता है. उसके अंदर क्या ऐड कर दिया जाता है? 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. ठीक है. और केक के अंदर भी बेकिंग सोडा डालते हैं, तो मदर यहाँ पर क्या डालती है? बेकिंग सोडा. देन बैटर, बेकिंग सोडा इज व्हाइट नॉन क्रिस्टलाइन पाउडर. बेकिंग सोडा कैसा रहता है? व्हाइट रहता है और वो क्रिस्टलाइन नहीं रहता. देखो कभी भी आप बेकिंग सोडा देखोगे ना, तो वो नमक के जैसा अलग अलग क्रिस्टल नहीं रहते उसके, उसका अलग ही रहता है, पाउडर के फॉर्म में रहता है बेकिंग सोडा. क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं रहता, छोटे छोटे दाने, दानेदार नहीं रहता है. क्रिस्टलाइन मतलब दानेदार स्ट्रक्चर उसका नहीं रहता है. जैसे शक्कर देखो अलग अलग दाना रहता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ठीक है.
अब इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर यू ऑल्सो कैन से सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। देन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3, अंडरस्टूड, ठीक है। सी नाउ प्रॉपर्टीज और आप यूजेस आप लोग पढ़ लो कि क्या है। NaOH CO3 रिएक्ट करता है मॉइस्ट लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, विच मीन्स दैट इट इज बेसिक इन नेचर। अब ये एक और चीज सुनो, मैंने क्या बोली थी, पीएच हमको निकालना होता है, ठीक है। अब पीएच हम निकालते कैसा है? एक पेपर आता है, पेपर, यू नो व्हाट इट इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी, दैट इज कॉल्ड एज लिटमस पेपर। लिटमस पेपर रहता है, उसको हम क्या करते हैं, वो समझो मैंने बताई फॉर एग्जांपल सी वाटर का मैंने बताई, तो सी वाटर के अंदर अगर मैंने वो सैंपल है मेरे पास, सैंपल ऑफ दैट सी वाटर, एंड इफ आई एम एडिंग दैट सी वाटर, सैंपल ऑफ दैट सी वाटर, लिटमस पेपर को अगर मैं वो सी वाटर के अंदर डालती हूँ, और अगर मेरा वो जो पेपर है वो क्या हो गया, रेड, दो तरीके का लिटमस पेपर आता है बेटा, दो तरीके का, एक रेड लिटमस पेपर आता है, एक ब्लू लिटमस पेपर आता है। क्या आता है? रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस आता है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो गया, मतलब क्या है, वो बेसिक है, मतलब वो सैंपल, व्हाट इज दैट सैंपल, इट इज बेसिक, okay, and when the blue litmus paper turns red, तो it is acidic in nature, understood, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, it is basic in nature because in the pH of it is from 7 8 to 14, and red litmus paper turns to the blue, and it is made to use bread, cake, ढोकला, केक बनाने में भी काम आता है, ढोकला बनाने में काम आता है, और ब्रेड बनाने में भी ये काम आता है। तो बीन बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये बेसिक है नेचर में, इट इज यूज टू रिड्यूस एसिडिटी इन द स्टमक। ये हमारे पेट में जाके, स्टमक के अंदर जाके, इसका बेसिक जो नेचर है, हमारे जो स्टमक की एसिडिटी है वो उसको रिड्यूस कर देता है, ओके। तो अभी ये NaHCO3 is used to make the active substance CO2 in the fire extinguisher। फायर एक्सटिंग्विशर आप सबने देखे, इन प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी बिल्डिंग्स, राइट, स्कूल में भी है हमारे। तो इसके इसके अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या डालते हैं, एक्टिव सब्सटेंस CO2 को ऐड कर दिया जाता है, बेकिंग सोडा उसके अंदर भी प्रेजेंट रहता है। फिफ्थ पॉइंट, बेकिंग सोडा इज यूज टू क्लीन एन ओवन। ओवन को हमको क्लीन कर दो, कोई भी क्लीनलीनेस प्रोसीजर के लिए ना, हमको बेकिंग सोडा है, व्हेन यू विल ऐड बेकिंग सोडा, अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से उसका क्लीनिंग प्रोसेस हो सकता है। अंडरस्टूड, इज देयर एनी डाउट इन दिस टिल हियर? ओके, तो विल स्टार्ट द नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इट इज ब्लीचिंग पाउडर। सुने हो आप लोग ने सारा, हम लोग बाथरूम में डालते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर को, ओके, क्लीनिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है ये, है ना। चलो, फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज दिस ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सॉरी, इट्स नॉट कैल्शियम क्लोराइड, आई एम सॉरी, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। व्हाट इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ओके। तो व्हाट इट इज CaOCl2, CaOCl2, ओके। तो यहाँ पर आपका देखो थोड़ा सा इंसिडेंट लिखा हुआ है, वो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। टैप वाटर हैज अ टिपिकल स्ट्रॉन्ग ओडर इन द रेनी सीजन। टैप वाटर, नल का पानी, जिसके जो अलग ही स्मेल आती है, उसका ऑर्डर अलग ही रहता है रेनी सीजन, बारिश के मौसम में। हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट? आपने कभी एक्सपीरियंस की हो ये चीज? कभी नल के पानी में देखो अलग ही खुशबू आती है बारिश के मौसम में, तो वो क्यों आती है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। वाटर इन अ स्विमिंग पूल ऑल्सो हैज द सेम ऑर्डर, और सेम टू सेम ऑर्डर देखो, हम जब स्विमिंग पूल के पानी में जाते हो, ब्लू कलर का पानी लोग डालते हैं, ब्लू कलर, हाँ, ब्लू कलर, सॉरी, वो तो टाइल्स रहती है लोग की ब्लू कलर की, लेकिन वही पानी में देखो हमारा खुशबू सेम आती है। तो वो क्यों आती है? इट इज द ओडर ऑफ द क्लोरीन गैस यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन द वाटर। क्योंकि वो पानी में व्हाट दे डू, वो पानी में उन लोग क्लोरीन का गैस डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? जो पानी के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर मौजूद रहते हैं, दे just to destroy those microorganisms from the water, they add the chlorine gas into it। क्यों डालते हैं? अब ये देखो,
Chlorine gas is a strong oxidizing agent and therefore it has a strong disinfecting as well as bleaching action. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडाइज कर देता है मतलब क्या? एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, उसके उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। सेकंड, उसका जो डिस इन्फेक्टिंग है ना, जैसा माइक्रोब्स आर इन्फेक्टिंग, तो डिसइंफेक्टेंट हम कभी ऐड करते हैं, देखो किसी भी चीज को, घर के कोने को साफ करने के लिए कभी डिसइंफेक्टेंट्स मिलते हैं। तो ये जो क्लोरीन गैस है वो एक डिसइंफेक्टिंग है और ब्लीचिंग एक्शन करता है, मतलब क्लीनिंग एक्शन भी बहुत अच्छा करता है। हम लोग कई बाथरूम में डालते हैं, देखो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, तो वो क्लीनिंग एक्शन में भी बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। क्लोरीन इज इनकन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस स्टेट। हाँ, इनकन्वीनियंट टू हैंडल, देखो कभी भी हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं उसका ओडर इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वी कैन नॉट हैंडल दैट, क्योंकि उसकी जो गैसियस फॉर्म रहता है, उसका जो गैस का जो ओडर रहती है, दैट इज क्वाइट हार्ड। ओके, देन inside instead, Sahil, off your camera. Instead, the solid bleaching powder which has the same effect is more convenient to use. अब देखो, जो क्लोरीन है ना, दो तरीके की आती है, क्लोरीन गैस आता है और क्लोरीन का पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर आता है, क्लोरीन गैस। जो गैशियस स्टेट रहती है वो हम हैंडल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सॉलिड स्टेट में रहता है, जो हम अपने घर पे यूज भी करते हैं, वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है क्योंकि हम उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। डिकम्पोजिशन होता है वो स्लोली स्लोली। क्लोरीन गैस क्यों डिकम्पोज होने लगता है वो? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से, और क्या हो जाती है, वो जो क्लोरीन जो गैस फॉर्म होती है वो रिलीज हो जाती है एयर के अंदर। ओके, नाउ ब्लीचिंग पाउडर गेट्स इट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का खासियत क्या है? ब्लीचिंग पाउडर की खासियत यही है कि जो क्लोरीन उसके अंदर से जब क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है ना, तो वही उसकी सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। नाउ आपके पास ये दिख रहा है रिएक्शन CaOCl2, दैट इज बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको किसके साथ ऐड किया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और देखो ऊपर वाला रिएक्शन दिख रहा है ऐसा एरो के साथ जो जा रहा है, इसका मतलब होता है ये क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या? ये क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस हो जाएगी यहाँ से रिलीज। अंडरस्टूड? देन उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद द स्लेकेड लाइम। नाउ व्हाट इज दिस स्लेकेड लाइम? स्लेक्ड लाइम, सॉरी, नॉट स्लेकेड लाइम, इट इज स्लेक्ड लाइम। ओके, दिस ब्लीचिंग पाउडर, अब ये ब्लीचिंग पाउडर मिलता कहाँ से? क्लोरीन गैस के रिएक्शन की वजह से सबसे पहले तो। और ये स्लेक्ड लाइम क्या होता है मालूम है? जो ये ना एक अल्कलाइन सब्सटेंस है जो क्या कंटेन करता है? कैल्शियम ऑक्साइड, इट कंटेन्स द कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, ये कंटेन करता है कैल्शियम ऑक्साइड। कौन? ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखा है CaOH2। जब इसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, then if you are able to understand this then right, if you are not then it's okay, ठीक है। Now this is the properties and uses of baking powder, sorry, bleaching powder. What is? See, देखो फटाफट देख लो ये चीज के ब्लीचिंग पाउडर क्या है। एक येलोइश व्हाइट कलर सॉलिड सब्सटेंस, येलो कलर का रहता है या फिर येलोइश व्हाइट कलर, येलो और व्हाइट दोनों कलर मिक्स रहते हैं, सॉलिड सब्सटेंस का रहता है। केमिकल नेम उसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसकी ऑर्डर भी किसके जैसे रहती है? इट्स ऑर्डर हैज ऑफ क्लोरीन गैस। देन व्हाट हैपेंड, इट इज यूज्ड, ये प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो इसको। You have to learn it, you have to learn it, okay? Then what is written? It is used for disinfection of drinking water,
ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर एट द वाटर वर्क्स एंड वाटर इन द स्विमिंग पूल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, और प्लस ये कहाँ पर यूज होता है, स्विमिंग पूल के अंदर। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ, अगर क्लोथ को हमको साफ भी करना है तो वो उस पे डालने के लिए भी काम आता है। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन बाय द रोड साइड एंड द गार्बेज साइड। डिसइंफेक्टेंट जो गंदगी रहती है उसको साफ करने